السلام علیکم دوستوں، 7 آسمان اور 7 زمینوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی جانکاری آپ کو دیں گے جس کو سن کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ جی ہاں دوستو، قرآن پاک کی سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک ہی آسمان نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کے اور اسی سے ملتے جلتے 7 آسمان یا 7 کائنات موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بھی بہت دور ہیں۔ بالکل اسی طرح سے 7 زمینوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جو ایک عقل مند انسان کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتا ہے کہ ایک کے اوپر ایک 7 آسمانوں اور زمینوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی ہماری اس دنیا کے جیسی اور بھی کئی دنیا آباد ہیں جہاں پر انسانوں جیسی یا اور کوئی بھی مخلوق رہتی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری اس دنیا سے بالکل الگ ہیں، یا پھر اس سے مراد زمین کے چاروں طرف موجود قدرتی لیئرز ہیں، یا زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ، یا پھر اوزون لیئر وغیرہ ہیں جو ہماری زمین کو ہر وقت آسمان سے آنے والے خطرے سے بچاتی ہیں اور زمین پر انسانوں کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں کا مطلب ہمارے آسمان جیسے 6 اور آسمان بھی ہیں، جس کے بارے میں صاف طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 250 سے زیادہ جگہ پر آسمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسا کہ سورہ النبأ کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ پاک نے فرمایا، 7 آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شو ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ حکم والا بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائی، اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کے طرح کی ہی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا پکا ثبوت ہے، جب اپنی جنتی سواری براق پر سوار کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رکیا ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام فیدون یا معاون ہے، اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ جبکہ تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت یا ہاریون ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر جسے ظاہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔
पांचवें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, और यहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या यदामया है और ये कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाने काबा ही की तरह एक और काबा जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ़ कर ले इसकी दोबारा ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं सातों आसमान के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है, और जन्नत का हर दरवाज़ा एक सितारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं। इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि हर मखलूकात की हद है, और अगर इससे आगे कोई भी मखलूकात अगर बढ़ना भी चाहे तो वो जलकर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफ़र मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ़ ले गए, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है, जो कि ज़मीन और आसमान या इस पूरी कायनात को घेरे हुए है। क़यामत के रोज़ हर जिंदा चीज़ को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नम को सातों आसमान से अलग बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेंगी। दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयत के अंदर आसमानों के बाद ज़मीन जैसे 7 ज़मीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद ज़मीन के तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, बल्कि इन्हीं आसमानों से ज़मीन जैसे कई और ज़मीनें भी मौजूद हैं। और इन आयतों के अंदर ज़मीन का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी हमारी अर्थ की तरह ही कोई ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, और ये ज़िंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। और इसका एग्जाम्पल देने की वजह यह है कि ज़मीन इंसानों के ज़िंदा रहने की जगह है, और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान के मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह को हर एक आसमान के दरवाजे से गुजार कर आलमे अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहां क़यामत तक आने वाले रूहें इंतज़ार करती है। हर एक आसमान के दरवाजे पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते इस रूह के माँ बाप यानी इसके ख़ानदान के बारे में पूछते हैं, और फिर उसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफ़र मेराज पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया यानी पहचान करवाई, और इन ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारका के अल्फाज है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े जंगल के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, यकीनन आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस जंगल के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से सातों आसमान के बारे में आपने यही बताया कि इन सातों आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर है। इस बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस दुनिया जैसी कई और दुनिया मौजूद है जो एक दूसरे से अलग अलग है।
इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जैसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथेन। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ये साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे, वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 23 टाइम गुना बड़ा है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही कभी उसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसको हम अब तक देख पाए हैं, इसका साइज 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 23 से मल्टीप्लाई करे तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है, जो कि 4.28 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 23 बनता है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम पड़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का सोच भी नहीं सकता। तो 7 आसमानों पर पहुंचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात की लंबाई चौड़ाई अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस तरह पावर और टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद इंसान पहले आसमान का सिरा तक नहीं ढूंढ पाया। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और ज़मीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहां तक इसकी हद मुकर्रर है। दोस्तों, किसी चीज़ का आंखों से नज़र न आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ दरअसल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद है और हम इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये हमारी यकीन करने की चीज़ें हैं और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी, डार्क मेटल, डार्क एनर्जी और इसी तरह की कई चीज़ें हमारी दुनिया वो कायनात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। 7 आसमानों का ख्याल भी कुछ अलग नहीं, क्योंकि वो हमारी नज़रों से किसी मसले की वजह से छुपा हुआ है। इस खूबसूरत कायनात की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिमिलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका तापमान अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज़्यादा थी। ये एक बड़े धमाके से फटकर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सी और नुबाला वगैरह सब कुछ बना, और ये कि ये हर वक्त लाइट के स्पीड से लगातार अब तक फैल रही हैं। जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीज़ें दूर दूर तक बिखर जाती हैं, और जब इस धमाके की शिद्दत ख़त्म होती है तो फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहां से इसकी शुरुआत हुई। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान पाक आज से 1400 साल पहले बयां करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि इस कायनात के ख़त्म होने के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है, क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं, क्या तुम नहीं देखते कि जितने भी चीज़ें ज़मीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे इख्तियार में दे रखी है, और कश्तियाँ भी जो कि इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि ज़मीन पर वो गिर न पड़े। बेशक खुदा लोगों पर निहायत मोहब्बत करने वाला है और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर न पड़े, इससे मुराद आज के ज़बान के अंदर साइंसी ज़बान में बिग क्रैश थ्योरी है, जिसका मतलब ये है कि जिस स्पीड से हमारा ये यूनिवर्स फैल रहा है,
स्पीड से एक दिन सिकुड़कर एक सिंगल लेयरिटी के अंदर बदल कर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह जिसके अंदर हवा भरकर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वो अपनी असल हालत के अंदर वापस आना शुरू कर देगी। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरे कायनात का करेगी। और ज़रा सोच कर देखिए, ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निज़ाम कायनात संभाले हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज़ आज ही इंसान पर गिर पड़े। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के बनने, इसके ख़त्म होने और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अरब की सरजमीन पर जबकि किसी भी किस्म का आसमानी या साइंस का कोई इल्म मौजूद नहीं था, तो फिर किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें बताई, इतनी डिटेल में बताई, जिसे आज के 21वीं सदी के आज के ज़माने की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करके फ़ख्र महसूस करती है। यकीनन उस खालिक ने जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला है और इसके राज को जानने वाला है, इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है, जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी कायनात का हर एक ज़र्रा है और वो इस ज़र्रे से भी बेखबर नहीं है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कुछ करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा।